definition of A the unit. single thing. Sorry. A single thing or a single something which is a single. Something which is a single. ये क्या है? ठीक है, okay. देखो, suppose if you are going to the shop, if you went to the shop to buy the sugar, okay, what will you ask to the shopkeeper? To give 1 kg of sugar, right? You will say, give me 1 kg or half kg of sugar, right? But if you go, if you ask about the milk, then what did you say? What would you say? Bolo? Liter. Liter. So kg is the unit of what? Mass. Liter is the unit of what? Volume. Meter cube. Volume. Okay. So there are so unit is defined as a standard. उसको क्या बोलते हैं? Unit is what? Standard used for the measurement of the physical quantity. For the measurement of the physical quantity. ठीक है? So unit का definition क्या है? Standard used for the measurement of the physical quantity. ठीक है? जब आप शुगर लेने जाते हो तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास. So mass is the physical quantity. So the SI unit of mass क्या रहता है? kg. ठीक है? तो यूनिट का डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. खाली समझ के ले लो. आज अपन खाली समझेंगे, कुछ टॉपिक है इसके बारे में डिटेल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th August. ओके, so I will dictate the notes. You have to write it down from 15th August onward. So up till that, just see, we will discuss about some definitions, then some concepts we are going to discuss. Okay, ठीक है? तो आपको खाली देखना है, एंजॉय करना है, और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देना है और सुनना है. ठीक? तो देखो, स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिट बोलेंगे. ठीक है? तो अभी अगर मैं आपको पूछूं कि सपोज which are the what do you mean by the physical quantity? ये पिछली बार भी पूछा था मैंने. फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन बोलो. पहले हमने यूनिट का देखा, अभी फिजिकल क्वांटिटी. कैन एनीबॉडी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी? बोलो. अरे बोलो. physical quantity is defined as any quantity which is measurable in physics. Okay, so quantity which is measurable in physics is known as a physical quantity. Measurable in physics. Okay, so the quantity which is measurable in physics is physical quantity. Okay, so that quantity is known as a physical quantity. अभी अगर मैं आपको कुछ ये पूछूं, some of the examples of the different physical quantities, तो आप किससे स्टार्ट करोगे? Mass, kg. हाँ, tell me the some examples of the basic physical quantity. अभी ये जो physical quantities है इसके भी 2 टाइप पढ़ते हैं. कौन कौन से? कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था. Which are the different types? बोलो. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल. फंडामेंटल बोले तो आपके माँ बाप, तो कैसे डिफाइन करोगे? the fundamental physical quantities are defined as those physical quantities which do not upon any other physical quantities for their measurement. So physical quantities के 2 टाइप कौन कौन से है? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. So suppose physical quantity is there, we have 2 types, fundamental physical quantity, ठीक है, and derived physical quantity. अभी इसमें कौन कौन से आते हैं रे physical quantities? Can you please tell me the name of the some of the fundamental physical quantities? देखो, mass,
ठीक है, मास इज द फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड इज लेंथ, ठीक है, थर्ड इज टाइम, time, देन टेम्परेचर, देन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, देन सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देन सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, वही मास है, ठीक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी मास का ऐसा यूनिट क्या है, अभी पहले ऐसा अपन सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बाद में देखेंगे। इसका यूनिट बोलो मास का केजी, सही, लेंथ का मीटर, meter, मीटर, सेकेंड, second, इसका केल्विन, Kelvin, केल्विन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ampere, एम्पियर, ओके। उसके बाद इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला सीडी, इसका एम्पियर, ठीक है, इसका केल्विन, इसका सेकेंड। सिंबल यू हैव टू राइट लाइक अ सिंबल ओनली, यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल, moles, ठीक है। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव एसआई यूनिट्स। इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं। देखो पहले जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, देयर आर वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स व्हिच वेर यूज्ड अर्लियर। तो पहले था एमकेएस सिस्टम, एमकेएस, देन सीजीएस, देन एफपीएस। तो बेसिकली ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इसमें से खाली 3 fundamental physical quantities are sufficient to express the any dimensions of the derived physical quantities। देखो यानी हर बार ये केस वैलिड नहीं है, यानी मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके डायमेंशंस ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पर अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लाइकवाइज देयर इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, एमकेएस। एम बोले तो क्या है, ये मीटर, एम बोले तो मीटर, के बोले तो केजी, किलोग्राम, kg, केजी, किलोग्राम, ओके, एस बोले तो सेकेंड, so if you express the unit of any physical quantity in terms of mk system, then in that case m represents what, length। मीटर क्या है, लेंथ ही तो है, सही है कि नहीं। हाँ, के क्या है, किलोग्राम, मास ही तो है। और सेकंड क्या है, टाइम ही तो है। time, तो ये तीन मेन फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी सीजीएस बोले तो बोलो, सी क्या है, सेंटीमीटर, ये मीटर था, ये सेंटीमीटर, ठीक है। जी बोले तो ग्राम, gram, एस बोले तो second, सेकेंड, एफ बोले तो फुट। foot, 1 foot is how many inch, बोलो, जनरल नॉलेज, 12, 12 इंच, सही बात है। 1 इंच इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1.5, 1.5 है, 2.54, ओके, और 25.4 mm, सही है ना। हाँ सर, 2.54 सेंटीमीटर बोले तो 1 इंच, सही है क्या नहीं। हाँ सर, हाँ, पाउंड बोले तो कितना केजी होता है रे, 0.approximately 45 kg, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। yes sir, F is what, फुट, फुट बोले तो ये क्या है, लेंथ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, लेंथ। पाउंड बोले तो ये क्या है, मास, सॉरी यहाँ पे हाँ लेंथ, यहाँ पे मास, बराबर है। और ये सेकेंड यानी टाइम, क्लियर। So with the help of these 3 fundamental physical quantities we can express the system of units, okay। अभी ये जो था
अभी वेरियस कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता था, यानी अगर आप यूरोप में गए तो उधर एफपीएस सिस्टम था, ओके। अगर आप if you go to the United States, then there is a MK system, okay. तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स लोग यूज कर रहे थे। तो लोगों ने क्या किया कि भाई इतना करने की वजह से कंफ्यूजन होता है, सो दे हैव जनरलाइज द system of unit and they have recommended only one system of unit. That particular system of unit is known as a system international. System international. Okay, that system international is named after what? SI system. समझ में आ रही है बात? पहले अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए जाते थे, उसकी वजह से क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था और कैलकुलेशन पर्पस बिकम्स लेंथी। दैट मींस अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रॉम एफपीएस टू एमकेएस। अब अगर अमेरिका में एमकेएस यूज कर रहे हैं और उधर से माल आया यूरोप से, तो वो था एफपीएस में, देन दे हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू एमकेएस एंड देन अगेन दे हैव टू, दैट मींस देयर वर्क विल बी इंक्रीज। तो यानी उनको ज्यादा काम करना पड़ता था, ओके। तो उसकी वजह एक सिंपल सिस्टम कर दी लोगों ने, so that is what system international. S stands for system, I stands for international. International system of units, that is, और इसको बोलते हैं system international. आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया बोलो? यूनिट का डेफिनेशन डिस्कस किया। यूनिट किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? Standard used for the measurement of quantity. Measurement of the physical quantity, सही बात, okay. Which are the different types of the physical quantities? Fundamental Fundamental physical quantity and the definition of the fundamental that physical physical quantity. Fundamental physical quantity का definition क्या होगा? Quantities that don't depend on any other quantities The- are called सही fundamental बात, quantities. okay. Which are the different 7 different types of the fundamental physical quantities? mass, length, time, temperature, हाँ, electricity, electric luminosity, current, electricity नहीं, हाँ electric current, sorry, हाँ amount of substance, हाँ, और एक भूल रहे, luminous intensity, okay. Luminous intensity. Luminous intensity is the intensity of the light or the wavelength of the light. ये solid angle आपको पता है? solid angle, plane angle. What is the difference? There are supplementary physical quantities. Okay, there are two types of the supplementary physical quantities. Supplementary physical quantities. ध्यान से सुनो अभी. There are two types of the supplementary physical quantities. First is known as a plane angle. क्या बोलते हैं? Plane angle. Plane angle is the angle in 2 dimensions. ये क्या होता है? Angle in 2D. Okay? यानी ये angle, कोई भी ऐसा angle, ठीक है? So this is the angle in 2D. It has the 2 dimensions. Okay? Because I have made it on the 2-dimensional paper, so I can show it properly. So this angle is what? This angle is plane angle. ठीक है? Plane angle का formula क्या है? Plane angle is also known as, आपको एक चैप्टर है अभी 12th स्टैंडर्ड में, सर्कुलर मोशन. कौन सा चैप्टर? सर्कुलर मोशन. ये सर्कुलर मोशन में ये जो प्लेन एंगल होता है उसको एक नाम है, that name is what? Angular displacement. The name of that particular physical quantity is what? Angular displacement. यानी प्लेन एंगल ही क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. इफ यू कंसीडर द सर्कुलर मोशन, ओके, इफ यू कंसीडर द सर्कुलर मोशन, द प्लेन एंगल इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अभी इसका फॉर्मूला क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? वही प्लेन एंगल का रहेगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगल इन रेडियंस is equals to arc upon radius. Arc upon radius. Okay, so अगर मैं बोलूं ये थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आर्क होगा,
सपोज ये आर्क ऐसे और रेडियस ये आर है, ये सर्कुलर मोशन ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो थीटा विल बी गिवन बाय व्हाट, एस बाय आर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यही प्लेन एंगल का फॉर्मूला है। प्लेन एंगल इज गिवन बाय आर्क बाय रेडियस, प्लेन एंगल इज गिवन बाय व्हाट, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। समझ में आ गया क्या ये प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल इज द एंगल इन कितना, 2D, ओके। इट इज नथिंग बट द एंगल, इसका फॉर्मूला क्या है, एस बाय आर। तो वही उसी को सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये प्लेन एंगल का एसआई यूनिट में अगर आपको पूछूं, कैन एनीबॉडी टेल मी द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? अरे बोलो, एनीबॉडी? एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, जैसे हमने मास का केजी दिया, लेंथ का क्या दिया, मीटर दिया, टाइम का सेकेंड दिया, वैसे प्लेन एंगल का क्या आएगा, बोलो कुछ तो बोलो। अरे क्या हुआ, अरे बोलो रे। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा, एंगल है ना वो, एंगल किससे मेजर किया जाता है, बोलो? डिग्री। हाँ, लेकिन डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ओके। डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है मैं बताता हूँ, रेडियन। नाम सुना है आपने, नाम सुना है? नहीं सुना है, ओके। तो सुन लो अभी, प्लेन एंगल यानी प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। मैं यहाँ पे रिलेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्रीज, तो आप मुझे बताओ 1 रेडियन का डिग्रीज में वैल्यू क्या आएगा, फटाक से बताओ। 1 रेडियन का वैल्यू चाहिए इन डिग्रीज, क्या आएगा? अरे 180 बाई पाई डिग्रीज ना, सही बात है। और 1 डिग्री का रेडियन में क्या आएगा, पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है? आपको समझ में आया है? मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भूत बोल रहे हैं। यस सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी अभी ये उसने विक्स खा लिया ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया प्लेन एंगल का कंसेप्ट? प्लेन एंगल क्या होता है, कौन बताएगा? मैंने जो कुछ भी बोला है एक 2-4 वर्ड बोल दो। प्लेन एंगल इज व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन द प्लेन एंगल? Plane angle is that angle which is, एक second. Plane angle, the angle in 2D. हाँ बस, Angle which is formed on 2D. बस खत्म। एंगल इन 2D इज प्लेन एंगल, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्लेन एंगल? ये प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हाँ ठीक है, प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? रेडियन। रेडियन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? दिस, ओके। आपको खाली ये ध्यान में रखो, आपको एग्जाम में कभी कभी डिग्रीज में देंगे तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का है, ओके। और रेडियन में देंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करने का नहीं है। फिर वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट, एसआई, ओके। उसके बाद ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। दैट शुड बी योर हैबिट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फिजिक्स, ठीक है। प्लेन एंगल समझ में आया आपको? अभी अपन दूसरा देखेंगे, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। ये क्या चल रहा है अपना टॉपिक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। पहले हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ये जो है इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज खाली 2 है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, ओके। So now we are going to see solid angle.
सॉलिड एंगल देखेंगे, किसी को पता है सॉलिड एंगल? एनीबॉडी? सर जो 3D फॉर्म में हो, सॉरी, एंगल इन 3D फॉर्म। सही बात, एंगल इन 3D। ये जो 2D था, अभी सॉलिड एंगल क्या होएगा? एंगल इन 3D। सही है, ओके। तो उसका ऐसा यूनिट क्या रहता है, किसी को पता है? इसका क्या रहेगा? रेडियन। उसका क्या रहेगा? उसका भी रेडियन ही होगा ना सर? उसका रेडियन नहीं, उसका यूनिट रहता है स्टे रेडियन। क्या रहता है? स्टे, STE, स्टे रेडियन। ओके, ठीक है। अभी मैं इधर है ना सॉलिड एंगल बना के दिखाता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक द 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल ऑन द 2 डायमेंशनल पेपर ऑफ द लैपटॉप, और यू कैन से स्क्रीन। अभी 3D वाला 2D पे बनाएंगे अपन। ओके, तो आप ऐसे इमेजिन करो। अभी इधर है, हाँ। अभी देखो ये 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 जो एंगल है इधर का, दिस एंगल यस सर। बाय द सिंबल ओमेगा, दिस इज सॉलिड एंगल। आप आइसक्रीम खाते हो कोन में? हाँ सर। हाँ, तो ये आइसक्रीम का कोन ही है ना। इसका जो इधर है, हाँ ये जो पॉइंट है अपना एपेक्स वाला, ओके, तो इधर जो एंगल सबटेंड होता है, ये जो एंगल दिखता है ना अपने को, तो दिस एंगल इज व्हाट? दिस इज हैविंग 3 डायमेंशंस। दिस इज हैविंग 3 डायमेंशंस, राइट? ऐसा नहीं है ना वो, यस सर। दिस इज हैविंग 3 डायमेंशंस। सो दिस एंगल इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। ये जो यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट होएगा, तो दिस एंगल इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। अभी सपोज ये रेडियस है, और ये जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? डी ओमेगा इज इक्वल टू DA/r²। ओके, दिस एंगल इज डी ओमेगा। सपोज छोटा है, D स्टैंड्स फॉर छोटा, ओके, स्मॉल। एरिया भी छोटा, तो छोटा है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू छोटा एरिया डिवाइडेड बाय r²। r बोले तो ये रेडियस, ठीक है। तो दिस इज, और इसका ऐसा यूनिट क्या रहता है? ऐसा यूनिट इज स्टे रेडियन। ओके, आपने क्या क्या देखा अभी? 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बोले तो एंगल इन 2D, सॉलिड एंगल बोले तो एंगल इन 3D। द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, इसका स्टे रेडियन। इसका फॉर्मूला रहता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला रहता है आर्क बाय रेडियस, इसका रहता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते। अभी मैं आपको कुछ प्रीफिक्स पूछूंगा। क्या पूछूंगा? प्रीफिक्स। अभी आप पूछोगे सर प्रीफिक्स क्या होता है? बताता हूँ क्या होता है। ये पूरा लिख के लेंगे अपन, लेकिन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम 15th August. Up till that you have to read the whatever the soft copy you will be having on the net, or if you purchase the book it is very good. Okay, 11th standard फिजिक्स का बुक आप परचेस कर लो और पढ़ो टाइम पास के लिए। ठीक है, आपके पास अभी टाइम ही है पास करने के लिए, तो कैसे भी कर सकते हैं आप। अभी इधर ध्यान दो, हम कहाँ थे? मैं क्या बताने वाला था? प्रीफिक्सेस। तुम मुझे आंसर दोगे फटाफट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम यानी निगेटिव से, एक्सट्रीम निगेटिव प्रीफिक्स। ओके, देन आई विल कम अप टू पॉजिटिव प्रीफिक्स। देखो मजा आएगा। मैं क्या बोलता हूँ देखो, प्रीफिक्स बोले तो पावर ऑफ 10, तो मैं एक्सट्रीम पावर से चालू करूंगा और पॉजिटिव पावर तक आऊंगा। तो उनको नेम है, नेम, द प्रीफिक्स इज हैविंग द नेम। पावर ऑफ 10 यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द प्रीफिक्स, एंड उसका एक सिंबल भी रहता है। ठीक है, सो विल मेक द चार्ट लाइकवाइज। सपोज 10⁻⁻18 है, उसको उसका प्रीफिक्स का नाम क्या है? 10⁻⁻18। दिस इज पावर ऑफ 10, राइट? पावर ऑफ 10 है, नहीं है?
So this power of 10 can be expressed in terms of the prefix. और इसका एक सिंबल भी रहता है, बोलो फटाक से। पावर 10⁻⁻18, देखो ध्यान से देखो, जनरल नॉलेज का बात है। उसको क्या है, प्रीफिक्स का नाम क्या है, एटो, सिंबल क्या है, छोटा ए, ठीक है। दूसरा आता है 10⁻⁻15, प्रीफिक्स का नाम है फेमटो, ओके, सिंबल है स्मॉल एफ, ठीक है। तीसरा है 10⁻12, ये तो आता होगा यार, सुना होगा ना, पिकोमीटर सुना है कि नहीं, पिको, स्मॉल पी, हाँ ठीक है, पिकोमीटर सुना होगा ना यार। हाँ 10⁻9, अरे ये तो सुना ही होगा, टाटा का कार है नैनो, नैनो, ओके। 10⁻9 बोले तो नैनो। अरे सुंजन कैसे डिस्कनेक्ट हो गई रे सुंजन, ये डिस्कनेक्ट हो गई क्या सुंजन? सुंजन, अरे उसको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सुंजन, कैन यू हियर मी? अरे उसका आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सुंजन, चलो उसको आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल से। चलो 10⁻⁻9 बोले तो नैनो, ठीक है। 10⁻⁻6 बोलो आप ही, कौन बोलेगा? 10⁻⁻6 माइक्रो, सही बात है, माइक्रो। उसका सिंबल क्या रहता है, माइक्रो का म्यू रहता है, म्यू, ओके। 10⁻³ बोलो, मिली, मिली मिली, चिली मिली नहीं, मिली, एम, ओके, सिंबल क्या रहता है, एम। देन 10⁻⁻2 सबको पता है, सबको पता है, सेंटी, ओके, सेंटी का सिंबल क्या रहेगा, सी, सी है 10⁻⁻1 क्या है, अरे बोलो, देसी, देसी, हाँ देसी नहीं, देसी, डी, ठीक है। 10⁻1, अभी देखो निगेटिव से पॉजिटिव में आए हम। 10⁻0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। 10⁻1 क्या होता है, बोलो, मीटर डेका, डेका, सिंबल इज व्हाट, डीए, ओके। डेका का सिंबल क्या है, डीए, ध्यान में रखो। देन 10⁻2, 10⁻2 बोले तो हेक्टो, ठीक है। हेक्टो का सिंबल क्या है रे भाई, एच। देन 10⁻3 तुमको पता है, ये तो सबको पता है, क्या, किलो, 10⁻3 इज किलो, किलो ठीक है। देन 10⁻6 मेगा, मेगा नहीं, हाँ मेगा, मेगा, कैपिटल एम। देखो ध्यान से देखो, ये स्मॉल एम में मिली, मेगा क्या है, कैपिटल एम, यही फर्क है सिंबल में, सिंबल में फर्क ध्यान से देखो। उसके बाद 10⁻9 क्या है, ये तो सुना होगा जो कंप्यूटर यूज करते हैं, गीगाबाइट्स, पता है ना, गीगाबाइट्स, गीगा, सिंबल क्या है, जी, कैपिटल जी, ओके। देन 10⁻12 बोले तो, जैसे इधर है 10⁻−12 क्या होता है, पिको, इधर क्या होता है, बोलो, तेरा, तेरा 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 सुरूर, तेरा, ओके, तेरा। 10⁻15 बोले तो
बोलो, किसी को पता नहीं है यार ये? पेटा, ओके, इट इज पेटा डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल पी। बेटा नहीं है, पेटा, ओके। 10⁻18, symbol, name of the prefix is what? Exa, and symbol is E, capital E, exa। आपको पूरा समझ में आ गया? यानी अगर मुझे एक्सप्रेस करना है कि मैं अगर ऐसा बोलता हूँ 1 माइक्रो कूलम, देन व्हाट इज दैट? 1 माइक्रो कूलम बोले तो 1 into 10⁻⁻6 कूलम। अगर मैं बोलू 1, you can say 1 attocoulomb, AC, 1 attocoulomb, then what do you mean by that? 1 into 10⁻⁻18 18 कूलम। ऐसा आपको आता है, ठीक है? समझ में आ गया क्या? फिजिक्स में ऐसे ही लैंग्वेज यूज होता है, उधर लिखते नहीं है 1 into 10⁻⁻6 कूलम, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, और 1 एटोकूलम और 1 फेम्टोकूलम। तुमको समझ में आ गया पूरा? हाँ ओके, तो यू हैव टू लिख के ले लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो टाइम, थोड़ा सा लिख के ले लो। लिखना अच्छी बात है, ये लिख के ले लो। तुम्हारे पास है क्या इन्फॉर्मेशन ये? इफ यू आर नॉट हैविंग दिस इन्फॉर्मेशन, प्लीज राइट इट डाउन ऑन द नोटबुक, ओके। और नोटबुक के पीछे वाले पेज पे लिखो, ठीक है? उसमें अपन जो कुछ बातें जो हमें नहीं क्या टेबल टाइप बनाते हैं अपन, उसमें लिखो ये, ठीक है? एंड यू हैव टू रिवाइज दैट। क्लियर है? झालं लिहून? हो। ओके, चलो अभी अपन एक नया टॉपिक देखेंगे जो हमने कल भी देखा था, डायमेंशंस। डायमेंशंस का डेफिनेशन आर्या ने बताया था, बोलो आर्या। Dimensions are the powers to which fundamental quantity can be raised in order to represent a derived physical quantity. अरे वाह, क्या डेफिनेशन है, सही बात है। ओके, तो अभी देखो जो डेफिनेशन, अरे ये सुंजन जा रही है, आ रही है, क्या कर रही है? ये देखो, हाँ ठीक है। अभी अपन क्या देखेंगे? डायमेंशंस। डायमेंशंस का डेफिनेशन तो बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अभी मैं आपको पहले फॉर्मूला से डायमेंशंस का डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं वो दिखाता हूँ। सपोज आई वांट टू एक्सप्रेस द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, मा, सही बात है। अभी मास के डायमेंशंस क्या है? देखो, डायमेंशंस आर व्हाट यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ MLT, मालती ध्यान में रखो। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। अभी मास में M क्या है? M, तो m⁻⁻1, ओके। मास के डायमेंशंस क्या लिखोगे? m⁻⁻1, L⁻�0, T⁻�0, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन बोले तो क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। अभी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी की जगह पे ये लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, सही बात है। तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलो? लेंथ है। टाइम क्या है? टी है। तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे एक्सेलरेशन के? बोलो, एम है क्या एक्सेलरेशन में? एक्सेलरेशन m⁻⁻0 L⁻⁴ कितना आएगा? 1, और 1 T⁻², T⁻⁻2 -2 आएगा ना, नीचे है वो। समझ में आ रही है बात? ओके, तो अभी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे को फोर्स के डायमेंशंस मिल जाएंगे। फोर्स के डायमेंशंस क्या आएंगे बोलो? m। अभी देखो, मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर का क्या होता है?
एडिशन होता है, तो 1 plus 0 is what? 1. 1. 0 plus 1 is what? 1. 0 plus 0 minus 2 is what? Minus. तो ये क्या आ गए मेरे को, फोर्स के डायमेंशंस आ गए। अभी देखो जो आर्या ने बताया डेफिनेशन, मैं इससे इसके जरिए वो डेफिनेशन प्रूव करूंगा। ध्यान से सुनो, डायमेंशंस of the given physical quantities are defined as the powers। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पावर्स है, पावर्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये MLT क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पावर्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज। हम क्या कर रहे हैं, कुछ रेज कर रहे हैं ना, इसके पावर को 1 बना रहे, -2 बना रहे, 2 बना सकते हैं, 3, ऐसा जो कुछ भी आता है। सो पावर्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज so as to obtain or represent, क्या represent कर रहे हैं, F is what, derived physical quantity, F is derived physical quantity, which we are going to derive with the help of M, L and T। MLT क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अरे तुमको समझ में आया है, अरे कळले का तुम्हाला, हो ना। कळले। आता तुम्ही मला वर्कचे डायमेन्शन सांगू शकता पटकन, वर्कचा फॉर्म्युला बोला पटकन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात। फोर्स के डायमेंशंस अब भी निकले हमने, अभी तो यहाँ पे